بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں۔ میرا دل ہے سیب سمندر آخری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اسقات، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اگلا دن بہت مصروف تھا۔ سفیر احمد سارا دن اپنے بھائیوں کے ساتھ تحصیل اور کچہری میں مصروف رہے اور یوں کچھ حد تک جائیداد کی تقسیم کا کام ہو گیا۔ فیکٹریوں وغیرہ کی تقسیم ظاہر ہے ان کی فروخت کے بعد ہونا تھی۔ شام کو سب خوشگوار موڈ میں چائے پی رہے تھے کہ عاصم اسلام آباد سے واپس آیا اور گھر میں یہ گیدرنگ دیکھ کر حیران ہوا اور سب سے سلام دعا کے بعد معذرت کر کے اوپر چلا گیا۔ کینیڈین ایمبیسی میں کچھ کاغذات جمع کروانے تھے۔ مختلف دفتروں میں چکر لگا لگا کر تھک چکا تھا۔ غسل کر کے چائے کا کپ بنایا اور ابھی کپ لے کر اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ ملازم نے آ کر بتایا کہ سفیر احمد اسے بلا رہے ہیں۔ یقیناً کوئی جدید فساد ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اس نے سوچا اور چائے کا کپ یوں ہی ہاتھ میں پکڑے پکڑے نیچے آ گیا۔ جی پپا، وہ ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم سفر سے آئے ہو اور یقیناً تھکے ہوئے بھی ہوگے، لیکن ایک اہم مسئلے میں تمہاری رائے درکار ہے۔ پھر وہ عاصم کی ماما کی طرف مڑے۔ تم بتا دو عاصم کو سب۔ میں؟ ماما نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ ہر مشکل کام میرے سر پر کیوں ڈال دیتے ہیں؟ انہوں نے شکوہ کیا تو زرتاشی نے عاصم کی طرف دیکھا۔ بات یہ ہے عاصم بھائی کہ سبین کے والدین اس کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے آپ کے حصے کی جائیداد اس کے نام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خدا، زرتاشی ذرا آرام سے صبر سے بات کرنے دیتی؟ ماما نے پریشانی سے پہلے عاصم کو اور پھر زرتاشی کو دیکھا۔ ماما، ہیر پھیر کی کیا ضرورت ہے؟ آگے پیچھے بات تو کرنا ہی ہے۔ کیا ہوا ہے سبین کے مستقبل کو؟ عاصم یکدم بھڑک اٹھا۔ اور یہ بات آپ لوگوں کو کس نے سمجھا دی ہے کہ جائیداد سبین کے نام لکھ دینے سے آپ اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا؟ میں نے اسے آج تک کانٹے جتنی تکلیف بھی نہیں ہونے دی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض نہیں، ایمان سمجھا ہے۔ اللہ، عاصم بھائی، یہ بات آپ محمود کو بھی سمجھا دینا، وہ ہماری ہر خواہش ایمان سمجھ کر نہیں، بیگار سمجھ کر ہی پوری کر دیا کریں۔ زرتاشی نے شرارت سے عاصم کی طرف دیکھا تو عارفہ بھی شوق ہو گئی۔ اور وہ جو آپ رینبو گولڈ کا لاکٹ لائے ہیں سبین کے لیے، وہ اس کی خواہش تھی یا آپ کے ایمان کی پختگی؟ سب ہنس پڑے۔ یوں ماحول میں جو ایک تناؤ سا تھا کچھ کم ہو گیا۔ عاصم نے مصنوعی غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ واجد حسین جو بے حد سنجیدہ بیٹھے تھے، انہوں نے عاصم کی طرف دیکھا۔ میاں عاصم، آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ تم سبین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو یا اکیلے ہی یورپ گھوم کر پھر کر عمر گزار دو گے۔ وہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے کہ کھونٹے سے باندھ دیا اور چارہ ڈال دیا۔ بیوی ہے تمہاری، اور جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں وہ اتنی غیر مطمئن کر دینے والی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے حصے کی جائیداد سبین کے نام کر دو تاکہ کل کلاں کیا ہوگا کل کلاں؟ عاصم نے ان کی بات کاٹ دی۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جس پر آپ اپنے یا کسی کے سامنے شرمندہ ہوں۔ سبین کو میں نے اپنے عمل اور اپنی زبان سے یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی دیوار، کوئی حد فاضل یا کوئی دوسری عورت کبھی نہیں آئے گی، نہ آ سکتی ہے۔ میں نے ہر طرح سے اس کے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس کا پرابلم اس کے وہم ہیں، جو کچھ تو اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں اور کچھ لوگوں کے پیدا کردہ، لیکن نہ تو وہ میری بات مانتی ہے نہ اسے میری پرواہ ہے۔ میں 2 دن بعد گھر آیا ہوں، اپنے کپڑے خود نکالے ہیں، چائے میں خود بنا کر لایا ہوں، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج کی بات نہیں ہے صرف۔ اسے اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو اب میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اسے اپنے مستقبل کے بارے میں کس چیز کا خطرہ ہے، یہ اس کا پرابلم ہے، میرا نہیں۔ پپا، اس کی آواز میں غصے کی لپک تھی۔ سبین کے نام جائیداد لکھنا یا نہ لکھنا یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، نہ میری ایسی کوئی ضرورت ہے اور نہ خواہش۔ بہتر ہے کہ اس بات کو یہاں ہی ختم کر دیا جائے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا، کہاں چلتی ہے؟ بات تو پوری کر لو اور ہمیں کسی نتیجے پر پہنچا دو۔ ماما نے اسے روکا۔ ماما، بہتر یہ ہے کہ مجھے اور سبین کو اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ مختلف افراد کی دخل اندازی سے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید الجھ رہے ہیں۔ وہ حتمی بات کہہ کر مڑا تو سبین کی والدہ رونے لگیں۔ میری بچی کی تو قسمت ہی خراب ہے۔
किस्मत नहीं, दिमाग ख़राब है। आसिम भड़क गया। जाने ये लोग इस बात पर वाविला क्यों कर रहे थे जिसका कोई वजूद ही नहीं था। दिमाग इसका नहीं, तुम्हारा ख़राब है। माजिद हुसैन तिल मिला उठे। तुम बीवी के हकूक़ अदा करने के बजाय फ़रार हासिल कर रहे हो। जब से हमने इसकी शादी की है परेशान होकर रह गए हैं। मैं आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। आसिम आग बगोला हो गया और तेज़ी से बाहर निकल गया। समीर इसके बेडरूम में इसके बेड पर लेटी किताब पढ़ रही थी। आसिम ने आगे बढ़कर इसकी कलाई पकड़ी और झटके से उठा लिया। जूता पहनो और मेरे साथ चलो अपने वालिदैन के पास। नीचे सफ़ीर अहमद ये कहकर उठ खड़े हुए। माजिद हुसैन, तुमने शख्स को शदीद नाराज़ कर दिया है जो नाराज़गी के मानी तक नहीं जानता था। अब वो क्या करेगा तुम जानो या वो। मैं सूरत हाल संभालने के काबिल नहीं। आप कहाँ चलती है? मामा ने परेशानी से इन्हें देखा। जवान खून है, कोई ऐसी वैसी बात कर बैठा तो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करेगा और हमारा बुढ़ापा भी रुसवा होगा। ऊपर चल कर इसे समझाएं। कल से इसके किरदार पर हमले किए जा रहे हैं। अब तुम ये चाहती हो कि वो मेरे सामने खड़ा होकर मेरी बात मानने से इनकार कर दे। मैं ये बेइज्जती क्यों झेलूं? सफ़ीर अहमद ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। मामा परेशान सी बैठी थी कि आसिम सबीन को कलाई से पकड़े हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। चचा जान, ये रही आपकी परेशानी, इसे साथ ही ले जाइए और किस्सा ख़त्म कीजिए। आसिम बेटा, ताई अम्मा ने कुछ कहने के लिए होठ खोले तो आसिम गुर्राया। सब लोगों से कह दीजिए कि मेरे मामलात में अगर किसी ने मुदाखलत की तो काट कर फेंक दूंगा। आसिम पर जुनून सा तारी हो गया था। इसके किरदार पर बेदर पे हमले किए गए लेकिन वो तहम्मुल से बर्दाश्त करता रहा। लेकिन ये कहना कि वो बीवी के हक़ूक़ अदा करने से फ़रार हासिल कर रहा है, इसे लगा जैसे किसी ने इसे बहुत गलीज़ गाली दी हो या फिर भरे बाज़ार में इस पर कीचड़ फेंक दी हो। सब एकदम खामोश हो गए थे। सिर्फ समीन की हिचकियाँ और सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। आसिम एक कहर भरी नज़र इस पर डालता ऊपर अपने बेडरूम में आ गया। आरफा ने इसे यूं सुर्ख आंखों के साथ ऊपर जाते देखा तो शैला आंटी को फ़ोन कर दिया। वो जानती थी कि आसिम को अपनी इस खाला के साथ बहुत दोस्ती है और वो ही अब सूरत हाल को संभाल सकती हैं। सारी बात सुनकर शैला आंटी ने कहा कि वो आ रही हैं। इधर वाजिद हुसैन अजीब मुश्किल में फंस गए थे। अगर बेटी को साथ ना ले जाते तो बेइज्जती और सबकी थी, ले जाते तो इसका घर तबाह होता। मामा ने इनकी परेशानी महसूस की। आप लोग परेशान ना हो, इसका गुस्सा बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। अभी मूड ठीक होगा तो हंसता हुआ नीचे आ जाएगा। सबीन एकदम रोते रोते उठी और ऊपर चल दी। शायद कोई छुपा हुआ अज़म, कोई अना की भावना। आसिम बालकनी से बाहर झांकते हुए कार्डलेस पर किसी से गुफ्तगू कर रहा था। इसकी आवाज़ भारी और शकिस्ता थी और वो अमेरिका के लिए सीट कंफर्म करवा रहा था। सियाह पतलून और सफ़ेद शर्ट जिसके बाजू ऊपर को मोड़े हुए थे और सब बटन खुले थे। वो नंगे पाँव खड़ा था। बात ख़त्म करके वो मुड़ा तो सबीन ने देखा इसकी आंखें नम और सुर्ख थीं। आंखों के गिर्द सियाह हल्के वाज़े थे। बाल बिखरे से थे और रंगत जैसे झुलस सी गई थी। इसके दाएं हाथ में सिगरेट सुलग रहा था। एक लम्हे को सबीन की नज़रें इसकी नज़रों से उलझीं और फिर वह बेड के नीचे से अपना टेची निकाल कर इसमें सामान रखने लगी। आसिम देख रहा था कि इसने सिर्फ वही कपड़े लिए थे जो इसने खुद बनवाए थे। आसिम इसके लिए बेशुमार कपड़े लाता रहता था लेकिन इसने वो कभी नहीं पहने। हालांकि इसकी नाराज़गियों के बावजूद कितनी बार आसिम ने इससे कहा था, लगता है सब रंग और ड्रेसेस तुम्हारे लिए ही बने हैं सबीन। तुम जब भी कोई रंग ज़ेब-ए-तन करती हो मौसम बदल देती हो। आसिम दीवार से टेक लगाए इसे खामोशी से देख रहा था। इसे अपने जहेज़ की ज्वेलरी रखी और फिर मुड़कर आसिम की बेड साइड से चाबियाँ निकाली और इसके अलमारी के वॉलेट से डायमंड हार्ट का वो लॉकेट निकाला जो आसिम ने पहली रात इसे दिया था और मुट्ठी में भींच लिया। इसकी आंखें जल थल हो रही थी और वो शिद्दत क्रिया से काँप रही थी। एक बार वो फर्श पर फिसल कर गिर पड़ी थी तो इसकी आंखों में आंसू देखकर वो खुद आसिम की आंखें नम हो गई थी। शहज़ादी, अपना दर्द मुझे दे दो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी सारी तकालीफ मेरी रूह में उतर आएँ। काश मैं तुम्हें कभी रोते ना देखूं, तुम हमेशा हंसती रहो। फिर इसने इसके गाल के नन्हे से तिल को उंगली से छुआ था। नजाल हिंदुश बखशम समरकंद बुखारा और वो जज्बात की इन उमड़ती घटाओं से बचकर लंगड़ाती हुई चली गई थी। और वो हमेशा ही ऐसा करती थी। वो ज़रा भी जज्बाती होने लगता तो वो इधर उधर हो जाती। शायद वो पिघलने से डरती थी। आसिम जानता था कि वो उसकी आंखों की तपिश से घबरा जाती है। एक दिन
एक दिन तुम ज़रूर हार जाओगी। वो मुस्कुरा देता। आखिर कब तक लड़ोगी खुद से, मुझसे? वो खामोश खड़ा अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखों से इसे देख रहा था। इसे लगा जैसे सबीन की नज़रें इससे कह रही हों, तो मुझे रोक क्यों नहीं लेते आसिम? क्या मेरे समरकंद और बुखारा में अब वो बहारें नहीं उतरती, या मेरे गाल का दिल अपनी आबोताब खो बैठा है? इसे लगा जैसे सबीन कह रही हो, मत देखो ऐसे मुझे, तुम मेरे इरादे ढा देते हो और मेरी फसीले दिल में नकब जनी कर रहे हो। यकायक सबीन ने इसके चेहरे से नज़रें हटाईं और ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ी। आसिम की नज़रों ने इसका ताक़ुब किया। ड्रेसिंग टेबल पर सबीन का सामान सजा था, इसका मेकअप, इसकी ज्वेलरी। वो चौंका। सबीन इसके बेडरूम में इसकी बेड पर लेटी थी, इसकी ड्रेसिंग टेबल पर इसका सामान सजा था। तो क्या आज शब रोशनी बन के कोई दिल में उतरने को था? क्या आज वही रात थी जिसका वो 1 साल से मुंतज़िर था? वो अनमोल भरा दिन था जिसके लिए 1 साल के हर दिन में इसने इसे ख़त लिखे थे और फ़ोन किए थे। क्या आज खुशियाँ बिन मांगे इसके आंगन में उतरने वाली थी? इसने गौर ही नहीं किया कि सबीन इसके बेड पर लेटी थी। उफ! वो बेइख्तियार सबीन की तरफ बढ़ा। क्या तुम वाकई जा रही हो सबीन? सबीन ने चौंक कर इसे देखा। मत जाओ, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मुझे बहुत अफसोस है। मैं सब नहीं करना चाहता था, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। मैं तुमसे इतना मुखलिस और अटैच हूँ कि मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे गाली दी हो। मैंने कभी तुम्हारे हक़ को गज़ब करने के मुतालिक नहीं सोचा। देखो तुम मत जाओ, मैं तुम्हें रोक लेता हूँ। सबीन के आंसू और सिसकियाँ तेज़ हो गईं, लेकिन वो निगाहें झुकाए पैक करती रही। वो इसकी तरफ नहीं देख रही थी। शायद वो जानती थी कि इसने आसिम की तरफ देखा तो इसके इरादे मिट्टी हो जाएंगे। वो हुस्न की तारीफ़ करना और दिल को मसखर करना जानता था। वो जानती थी इस रोज़ से जब इसका निकाह हुआ था, वो ऐसा जादूगर है जिसके सहर को तोड़ा नहीं। वो 1.5 साल से खुद से जंग करते करते निढाल हो रही थी, और जब से वो आया था हर लम्हे इसे लगता जैसे उसके जादू के सामने हार जाएगी। खुदा के लिए आसिम, कुछ मत कहो, मत रोको मुझे। इसने सर उठाया। आंखों से आंसू रवा थे, काजल फैल गया था, जुल्फ़ें बिखर सी गई थी, आंखें और चेहरा मुसलसल रोने से मतूरम हो रहा था। आसिम के दिल पर चोट सी पड़ी। ये नाजुक और कोमल लड़की जिसके चेहरे की सुबह में मलाहमत की शबनम है, ये सरोकद लड़की जिसका बदन छरीरा है और आंखें भंवरा सी। इसकी हंसी कितनी तरन्नुम खेज़ है और इसकी चाल में सबा का अंदाज़ा और बदन की लोच में मैल दूर दूर होकर भी महसूस करता रहा हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे मैं आकर खुद अपना ही गिरेबान चाक कर बैठा हूँ। रेशम और मलाहत को संग्रेज़ों को दरिया में डुबो दिया, अपने ही रोज़ और शब को खुद अपने हाथों से मुनक़ता कर दिया। वो बेशक अजनबियों की तरह रह रहे थे, लेकिन वो इसकी बीवी थी, बावजूद इसके इतने झगड़े के। आसिम ने कभी सख्त लहजे में इससे बात ना की थी। आसिम ने कभी बेवक्त इसका दरवाज़ा नहीं खटखटाया था कि वो परेशान ना हो जाए, और बड़े तहम्मुल से इसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। वो इसकी बीवी थी और वो इसका हक़ इतना तस्लीम करता था कि वो चाहे तो इसकी जान ले ले। वो समझता था कि इसकी बातें, इसकी सरगोशियाँ, इसका चुलबुलापन और बेकरारियाँ एक रोज़ सबीन का गुस्सा और नाराज़गी ख़त्म कर देंगी। लेकिन वो जा रही थी, और इसकी महक के बगैर मैं तो मुरझा कर बिखर जाऊँगा। वो तो कब से इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका था, लेकिन वो अभी तक बेखबर थी। कोमल तो एक लम्हा ख्वाब था और वो हकीकत जाने कब वो दिल के तख्त पर तख्त नशीन हो चुकी थी। अपनी मसरत संभाले इसके दिल में बराजमान, हर लम्हा मुस्कुराती रहती। देखो रुक जाओ सबीन, मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, तुम नीचे चलो, मैं आकर तुम्हारे वालिदैन से माजरत कर लेता हूँ, इनसे साफ कह देता हूँ सबीन मेरी जान है, मेरे रोज़ और शब की मालका, इसे मत लेकर जाएं। सबीन मैं वादा करता हूँ कि जितनी दुरुस्ती से तुम्हें जाने को कहा है, इससे ज़्यादा एहतराम से तुम्हें रोक लूँगा। मैं दरवाजे में खड़ा हो जाऊँगा, तुम्हारा रास्ता रोक कर तुम बाद में मुझसे बदला ले लेना, जितना जी चाहे झगड़ लेना, लेकिन अभी मत जाओ सबीन, तुम्हारे बगैर मैं बिखर जाऊँगा। मेरा यकीन करो, मैं सर तपा तुम्हारा हूँ इस रोज़ से जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। इसने एकदम आगे बढ़कर सबीन को बाजू से पकड़कर इसकी आंखों में झाँका। मेरी बात सुन रही हो ना सबीन, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। चांदनी तो शायद कब से बिखरने को थी, लहरें साहिल को रवां थीं। वो तो मिट्टी होते इरादे और पिघलते दिल के साथ बदौती आंखों से ठंडक की तरह
तो उतरती बातों की शबनम में भीग चुकी थी। आसिम ने इसका बाजू हल्का सा खींचा और उसके सीने से आ लगी। बरसों की प्यासी धरती सैराब हो रही थी। मोहब्बत एक अनहोनी का नाम है शायद, और वो अनहोनी हो चुकी थी। आसिम ने मुस्कुरा कर इसे देखा, नरमी से इसके लबों को छुआ। ओके, मैं अभी आता हूँ। और सबीन वहीं कारपेट पर खुले अटैची केस के पास मधोर सी बैठ गई। सबीन को ऊपर आए काफ़ी देर हो चुकी थी। सबीन की वालदा ताई अम्मा के उकसाने पर कि सबीन ने इतनी देर क्यों कर दी, घबरा कर ऊपर आई तो आरफा भी इनके साथ थी। भाभी, आरफा ने कमरे में आकर इसके कंधों पर हाथ रखा। आप ठीक तो हैं ना? हाँ, इस रन्नी मगनूद की सी कैफियत में कहा। उलझे बाल, सुर्ख आँखें, भारी पपोटे। हाय मेरी बच्ची, सबीन की वालदा ने वाविला किया। आरफा, पानी लाओ, कहीं मेरी बच्ची ने कुछ खा तो नहीं लिया। आरफा भागकर पानी लाई और सबीन के होठों से गिलास लगा दिया, जिसे सबीन ने पी लिया। और फिर आरफा ने इसे सहारा देकर उठाया। चलो मेरी बच्ची, नीचे चलो। आसिम वॉशरूम से सुन रहा था। आखिर सबीन बोलती क्यों नहीं? शायद वो आलम ख्वाब में थी। किसी अनहोनी के नशे ने इसे और जान बल्ब कर दिया था। आसिम वॉशरूम से बाहर निकला तो सबीन नीचे जा चुकी थी और नीचे शोर मचा था। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को, बच्ची ने कुछ खा लिया। मैंने कुछ नहीं खाया, मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे, क्या मजाक है। सबीन आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज कर रही थी, लेकिन इससे ज़बरदस्ती सोफे पर लिटा दिया गया। तभी शैला आंटी नीचे लाउंज में दाखिल हुई। उन्होंने घबरा कर फ़ौरन इसे चेक किया। कुछ नहीं है, सिर्फ जज्बाती दबाव और टेंशन है, चंद घंटों में नॉर्मल हो जाएगी। शुक्र है, मैंने तो समझा था बच्ची ने जहर वगैरह ना खा लिया हो। अपने बेडरूम में बैठा हुआ आसिम नीचे की आवाज़ें सुन रहा था। सर एकदम बहुत भारी भारी हो गया था। वो उठा और अपने लिए कॉफ़ी बनाई। काश, काश मैं तुमसे ना मिला होता कोमल। तुमने जब ही ने ज़िंदगी पर इतनी गहरी खराशें डाल दी हैं कि इनके निशान एक जहान उलट पुलट किए देते हैं। तुम्हें खबर भी ना होगी कि किसी एक शख्स पर क्या क्या बीत गई, जो कभी तुम्हें अपना समझकर एक दुनिया की बादशाहत अपनी मुट्ठी में लिए बैठा था। वो कॉफ़ी का मग हाथों में लिए सोचों में गुम था कि शैला आंटी दस्तक देकर अंदर चली आईं। अरे आप! वो इन्हें अचानक देखकर खुश भी हुआ और हैरान भी। आइए, आपको साउथ अफ्रीका की कॉफ़ी पिलवाता हूँ। पहले तो ये बताओ कि ये क्या हंगामा कर रखा है। मैंने? आसिम ने अपनी तरफ इशारा किया। हाँ, तुमने। मुझे आरफा ने फ़ोन पर बताया है कि तुमने सबीन को घर से निकल जाने को कहा है। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, दुनिया घूम चुके हो, लठ मार गंवारों जैसी हरकत क्यों की? और चलो नीचे। उन्होंने इसका कान पकड़ा। तुम्हारे खालू नीचे तुम्हें याद फरमा रहे हैं। आप डॉक्टर साहब को साथ क्यों लाईं? वो क्या सोचते होंगे? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? आंटी शैला ने इसे गुस्से में देखा तो फ़ौरन पंतरा बदला। पहले तो अपने साउथ अफ्रीका की कॉफ़ी पिलाओ और फिर सारा चक्कर बताओ। आसिम ने मुख्तसरन इन्हें सब हकीकत बताई। खैर, जो भी हुआ, अब जाओ इसे रोक लो। वो तुम्हारी इज्जत और गैरत है। लोगों को कहानियाँ बनाने में कितनी देर लगती है। तुम किस किस की ज़ुबान रोकोगे? और कोई वजह भी हो। तुमने ये ज़्यादती की, अनपढ़ और जाहिलों वाली हरकत की तुमने। सबीन बहुत अच्छी लड़की है, वो इस सलूक की अहल नहीं जो तुमने किया। आसिम, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। कसम से आंटी, मैंने इसे रोका था और शायद वो रुक भी जाती। अभी कुछ देर पहले तो इसकी बाहों में पिघल गई थी, बेखुद हुई जा रही थी। इसके होठों की नरम हिद्दत का लमस अभी तक इसके होठों पर जिंदा था। फिर पता नहीं, मैं वॉशरूम में था, इसकी वालदा और आरफा आई तो इसे नीचे ले गई और मैं तो इसके इंतज़ार में बैठा हूँ। तुम क्या समझते हो बेवकूफ़ कि तुम्हारे दो ज़ुबानी जुमलों से पिघल जाती, जबकि तुम इसे बाजू से पकड़ कर खींचते हुए नीचे ले गए थे। ये इसकी बेइज्जती थी आसिम। तुम तो औरत का एहतराम और इसकी इज्जत करने वाले हो। फिर आंटी शैला ने पुरसोच नज़रों से इसे देखा। ये एक दिन की बात नहीं है आंटी, ये हमारा मामला तो पिछले 1.5 बरस से चल रहा है। सभी इनके वालिद को मिल वाले वाक़े को बुनियाद बनाकर हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पापा मेरे हिस्से की जायदाद सबीन के नाम लिख दें। आंटी, मुझे सबीन से प्यार है, मेरी जान है वो। मैं इसे कांटा चुभने की तकलीफ़ भी नहीं देना चाहता। हालांकि जब से शादी हुई है उसने मुझे कोई सुख नहीं दिया। वो अपनी माँ और ताई अम्मा की बातों पर मेरी निस्बत ज़्यादा यकीन रखती है। आसिम, ये सब सही सही, लेकिन तुम इस वक्त जिस तरह भी मुमकिन हो इसे रोक लो। वो मासूम है और ताई अम्मा की बातों में आ गई है, जो तुम्हारा घर आबाद नहीं करना होने देना चाहती। लेकिन मेरी जान, सभी इनको इसके भोलपन और मासूमियत की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। बाखुदा आंटी,
मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता था। गुस्से में कह दिया, मैंने जाने को अगर वो रुक जाए तो मैं हर तरह के ताउन के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मसला अना का है। क्या खबर सबीन माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर रुकने से इनकार कर दे और मेरी इज़्ज़त दो कौड़ी की हो जाए। अगर वो मेरे रोकने पर भी चली गई तो फिर शायद हम दोनों कभी इकट्ठे ना हो सकें। अच्छा ठीक है, कोई रास्ता निकालते हैं और तुम्हारा आज रात का खाना हमारे साथ खाओ और ख़बरदार बगैर सबीन के मत आना, नहीं तो लाड तुम्हारी पतलून फाड़ देगा। हाँ ये सही है, दोनों रात का खाना हमारे यहाँ खाएं। डॉक्टर ज़मान ऐन इस वक्त पर ऊपर आ गए और फिर आसिम ने मिलकर शैला को अपने साथ लेकर नीचे चले गए और इसे अपने साथ आने का इशारा किया। चंद मिनट बाद वो नीचे आया तो ड्राइंग रूम में सब जमा थे। पप्पा का चेहरा तमतमा रहा था। वाजिद हुसैन गुस्से में थे। आंटी शैला और मम्मा सबीन की वालदा को समझा रही थी। आसिम को आते देख कर साथ ही वाजिद हुसैन भी जाने के लिए तैयार खड़े हो गए। वो किसी सूरत भी सबीन को छोड़कर जाने के लिए तैयार ना थे। चचा जान, आसिम आगे बढ़ा। यहाँ सब ने गुस्से में एक दूसरे को जो जी में आया कहा, बखुदा मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि सबीन इस तरह यहाँ से जाए। मैं माजरत ख्वाह हूँ, आप भी दरगुजर से काम लें। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ क्योंकि मैं गुस्से में था। मेरा मकसद हरगिज़ किसी को तकलीफ़ देना न था, ना ही किसी का दिल दुखाना मकसद था। मेरी दरख्वास्त पर झगड़े को यहाँ ही ख़त्म कर दें। सबीन आपके साथ चली गई तो फासले बढ़ जाएंगे और यकीनन आपका मकसद फासले ख़त्म करना है, बढ़ाना नहीं। हो सबीन, ये कहकर आसिम ने सबीन के हाथ से अटैची केस लिया जो जाने के लिए लाई थी। आओ, दूसरे हाथ से इसने सबीन का बाजू पकड़ा और जाने के लिए मुड़ा। ठहरो मियाँ, वाजिद हुसैन ने गुस्से से इसे रोका। इतनी जल्दी फैसला करके खुद ही बदल डाला। बरखुरदार, बात अब तुम्हारे चाहने या न चाहने की नहीं है। आज तो सबीन कम अज़ कम यहाँ नहीं ठहरेगी। हम इसे साथ ले जा रहे हैं। अगर जी चाहे तो हमारे यहाँ आ जाना। अगर सबीन तुम्हारे साथ आने पर रजामंद हो तो ले आना। सबीन ने आसिम से अपना हाथ छुड़ाया और वाजिद हुसैन के करीब जाकर खड़ी हो गई और आहिस्ता से बोली, चलिए अब्बू। फिर वो ममा के पास आई, सलाम किया। सफ़ीर अहमद के पास जाकर इन्हें खुदा हाफिज़ कहा। सफ़ीर अहमद ने परस निकाला और जितने पैसे हाथ आए इसे निकाल कर देते हुए कहा, बेटा माँ बाप के घर रह कर जल्दी आना, मैं तुम्हारे बगैर उदास हो जाऊँगा। उन्होंने इसके सर पर प्यार किया। सबीन की सिसकी निकल गई और फिर इनके सीने पर सर रखकर इतना रोई कि इसकी चीखें निकल गईं। इसकी वालदा ने इसे बाजू से पकड़ा और वो तीनों बाहर निकल गए। जाते जाते सबीन ने आसिम की तरफ देखा। ऐसी नज़रें जिनमें उम्मीद, इंतज़ार और यकीन था। वो कह रही थी, मुझे लेने आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। लेकिन आसिम तो अपना मान टूटने पर हैरान खड़ा था। जाने क्यों इसे यकीन था कि सबीन इसका मान रख लेगी और अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन भरम टूट गया था। कुछ देर वो यूं ही पत्थर बना खड़ा रहा, फिर अपने बिखरे वजूद को समेटता ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। क्या था सबीन, आज तुम ना जाती, मैं देवी बनाकर तुम्हारी पूजा करता। मैं तुम्हें इतना प्यार देता, इतनी मोहब्बत देता कि इन 1.5 साल की तलखों को तुम भूल जाती। लेकिन सबीन, तुमने मुझे बहुत अजियतनाक रात थी। इतनी अजियतनाक रात तो वो भी ना थी जब कोमल इससे छिन गई थी। आज कोमल का दुख फिर जाग उठा था। दोनों दुखों ने इसे रात भर जगाया। सुबह नाश्ते पर इसने पप्पा और मम्मा को रात की फ़्लाइट से वापस जाने की इतला दी। बेटा जल्दी आना, मम्मा ने इसे ताकीद की। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? वो कतई तौर पर मायूस हो चुका था। लेकिन मामा पापा की मुसलसल कोशिश और झगड़ों के बाद इसके हिस्से की जायदाद सबीन के नाम लिख दी गई। इसे अलहदा घर ले दिया गया जो इसके नाम था और आसिम की तरफ से माहाना खर्च के लिए रकम मुकर्रर की गई। और यूँ सबीन हर शर्त बनवा कर मम्मा पापा के साथ वापस आसिम के घर आ गई। आसिम को मम्मा ने मजबूर किया कि फ़ौरन आए। वो मम्मा के मजबूर करने पर लौट आया और मुसलसल 3 साल तक साल में 3-4 चक्कर पाकिस्तान के लगाता रहा। लेकिन सबीन तो अपनी ज़ुबान पर अंगारे रख लिए थे। इसके होंठ जहर में भीगे रहते और वो कभी कोमल के हवाले से तंज करती, कभी यूरोपियन लड़कियों के हवाले से और कभी तारा का किस्सा ले बैठती। हर छुट्टी का इख्तिताम लड़ाई झगड़े पर होता। इस दौरान औलाद भी हो गई। सबीन, वो इसे समझा समझा कर थक गया। भूल जाओ सब, मैं इतनी दूर से तुम्हारी खातिर आता हूँ और तुम इन लम्हों को अपने रवैयों की बदसूरती से जहरनाक बना देती हो। सुनो, मुझे अपना लो, मैं पूर तुम्हारा हूँ। लेकिन सबीन ने इसे कभी दिल से कबूल नहीं किया। सबीन का दिल कभी इसकी तरफ से साफ़ नहीं हुआ। वो चंद लम्हों के लिए खुश भी होती तो फिर वैसी ही हो जाती, ज़ुबान पर कांटे उगाते। इस तक जाने की हर कोशिश नाकाम हुई जाती थी। इनके दरमियान पैदा शुदा खलीज गहरी होती गई।
थक कर आसिम ने साल ब साल आना छोड़ दिया। समीन अपना अलहदा घर में, जो इसके वालिदैन के घर के करीब था, बच्चों समेत मुंतकिल हो गई। अगरचे इनके दरमियान बाकायदा अलहदगी ना हो सकी कि ये मम्मा और पापा की ख्वाहिश थी। उन्होंने आसिम से वादा लिया था कि वो सभी इनको कभी भी अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं करेगा, ख़ास तौर पर अब जबकि 3 बच्चे भी थे। आसिम ने वादा कर लिया था, लेकिन इसने पाकिस्तान आना छोड़ दिया था। 3-4 साल बाद चक्कर लगाता भी तो मम्मा पापा से मिलकर वापस चला जाता। क्या कुछ नहीं किया था जो समीन ने कहा, चाहा, दिया। जायदाद, अलहदा घर, हर खुशी पूरी की, आसाइशों के ढेर लगा दिए, अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। लेकिन समीन ने इसका वो एक जुर्म माफ़ ना किया कि वो इसके साथ शादी करने से पहले किसी कोमल से शादी करना चाहता था। क्या वाकई ये इतना बड़ा जुर्म था? वो अक्सर अपने आप से पूछता था। ये उसने शादीशुदा ज़िंदगी के 15 साल गुजार दिए थे, लेकिन 15 सालों में खुशी और रफ़ाक़त के लम्हे कितने मुख्तसर थे, उंगलियों पर गिने जा सकते थे। वो 15 सालों से शदीद धूप में आबला पा चल रहा था। वो चाहता तो कहीं किसी शजर साया दूर तले बैठ जाता, अगर वो इशारा भी करता तो कहीं तो वो इसके लिए कोई कई दामन वाह हो सकते थे, लेकिन दिल के दरवाज़ों पर ताले लगा दिए थे और प्यासा चला जा रहा था। अब तो थकन सी रग रग में उतरने लगी थी। एक घर, एक मुकम्मल पुरसकून घर की चाह कभी कभी दिल में फाले मारती। क्या था समीन, अगर तुम माफ़ कर देती? क्या था अगर तुम ताई अम्मा की बातों में ना आती तो आज हम दोनों की ज़िंदगी नाकाम ना होती? तुमने मुझे तो बर्बाद किया ही था, खुद को भी बर्बाद कर डाला। क्या तन्हाइयाँ तुम्हें भी मेरी तरह डसती ना होंगी? क्या तुम भी अक्सर रातों को करवटें बदल बदल कर सुबह नहीं करती होंगी? क्या इन 3 बच्चों की जिम्मेदारियां संभालते तुम्हारे जी में मेरी रफ़ाक़त की ख्वाहिश ना मचलती होगी? इन दिनों वो बहुत शिद्दत से इसे सोचने लगा था। ऐसे में सुमेरा इसे अचानक मुलाकात और कोमल की कहानी सुमेरा से कह देने के बाद जैसे एक बार फिर दिल में सोई आरज़ुएं बेदार हो गई थी। सुमेरा इसे शादी पर उकसाती तो समीन अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ इसके दिल में उतर आती। वो बच्चों की बातें करती तो इसके सामने तीनों आ जाते। वो दिल में फूल बूटे उगाने और जाले और धुआं साफ करने की बात करती तो समीन फूलों से मुस्कुराहट लबों पर सजाए तस्वुर में आ जाती। लेकिन शायद इससे खाली दामन ही रहना है, हमेशा और हर लम्हे धुएं से जलना है और सारी उम्र अपनी सलीब खुद अपने कंधों पर उठा कर चलना है। एक बार फिर समीन ने अपनी तरफ आने का हर रास्ता बंद कर दिया था। इसकी तीर तंज़ी आवाज़ भी तक इसके कानों में गूंज रही थी। सिगरेट का एक गहरा कश लेते हुए इसने अपनी थकी हुई आंखें ऊपर उठाईं। सुबह के 4 बज रहे थे। इसके सामने रखा एस्ट्रे भर चुका था। इसने हाथ में सुलगता सिगरेट एस्ट्रे में मसला, तभी फ़ोन की बेल बज उठी। दूसरी तरफ जवाब था। खैरियत है ना? आसिम का दिल कांप उठा। मम्मा की तबीयत ख़राब है भाई, इन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया है। थोड़ी देर पहले इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। नहीं, आसिम को यकीन नहीं आ रहा था। अभी 3-4 घंटे पहले तो वो मुझसे बात कर रही थी। हाँ, बस अचानक ही सांस की तकलीफ़ हुई जो बढ़ती गई। मैं हॉस्पिटल ले गया, ऑक्सीजन लगाई गई है, वो इमरजेंसी में है भाई। वो एकदम रो पड़ा। मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, हौसला करो जवाद। आसिम ने खुद पर काबू पाते हुए उसे हौसला दिया। और ये सारा किया धरा सबीन भाभी का है। वो जब भी आती हैं मम्मा की तबीयत ख़राब हो जाती है। और आज तो उन्होंने बहुत झगड़ा किया और मम्मा के मना करने के बावजूद 2:30 बजे रात अकेली ड्राइव करती हुई मुल्तान चली गई। और इनके जाते ही मम्मा बहुत डिप्रेस हो गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। जवाद, हौसला करो, महमूद और जरताशी को इतला दो। बाजी और भाईजान को इतला दी तुमने? हमें पहली फ़्लाइट से आ रहा हूँ, खुद को संभालो। इसे हौसला देकर आसिम ने फ़ोन बंद किया तो खुद इसका वजूद टुकड़े टुकड़े हो रहा था। आंसू थे कि उमड़ते ही चले आते थे। इसने उठकर वज़ू किया, खुदा के हजूर सर बसजूद हो गया। जो हस्ती इसके लिए तपती हयात में अमृत थी, परेशानियों की धूप में साया थी, अब्र रहमत थी, जो मताए जान से ज़्यादा अजीज़ थी, जो माँ ही नहीं दोस्त, मेहरबान और निगहबान भी थी, अब इस वक्त हॉस्पिटल के आईसीयू में बेहोश पड़ी थी और अनजाने में उसका सबब बना था। और समीन, ऐ मेरे रब, इसने सजदे में पड़े पड़े दुआ की। मैं जानता हूँ तो माँ की मोहब्बत की कितनी लाज रखता है। एक माँ की परेशानी देखी तो सफ़ा मरवा को रुकने हज बना दिया।
تو نے حضرت موسیٰ کو ہمیشہ بخشا جب وہ کوہ طور پر آتے اور ان کی ماں فریاد گناہ ہوتی۔ رب العالمین، تو نے ماں کے صدقے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ تو رحمان اور رحیم ہے، اپنے ایک عاجز بندے کی فریاد سن لے۔ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھ میں اور ایک ماں میں مشترک ہے۔ جانے کتنی دیر تک عاصم دعا مانگتا رہا، پھر جیسے دل کو سکون سا ملا، ایک یقین سا کہ اس کی دعا بارگاہ رب العزت میں مستجاب ہوئی۔ وہ اٹھا، اس نے 11 بجے کی فلائٹ سے سیٹ بک کروائی اور آنکھیں بند کر کے کافی کے مگ لیتے ہوئے زیر لب پھر دعائیں مانگنے لگا۔ لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا وہ شیخ زاید پہنچا تھا۔ ابھی ان کی طبیعت ٹھیک طرح سے سنبھلی نہ تھی، لیکن انہیں ICU سے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ عاصم کو دیکھا تو ان کی حالت پھر سیریس ہو گئی۔ ڈاکٹروں کی بھرپور کوششوں سے اللہ نے کرم کیا، دل کے 2 والو بند تھے، سرجری ناممکن تھی کہ وہ شوگر کی مریض تھیں۔ پہلے اینجیوپلاسٹی اور پھر بلیوننگ کے ذریعے والوں کو ممکنہ حد تک کھولا گیا۔ 10 دن تک عاصم، جواد اور عارفہ نے آنکھ تک نہ جھپکی۔ محمود اور زرتاشی بھی آ گئے تھے۔ 12ویں دن انہیں عارضی طور پر ہاسپٹل سے فارغ کیا گیا تو گھر پہنچ کر مما نے عاصم کو اپنے کمرے میں بلایا اور کتنی ہی دیر تک اس کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیے خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں، اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر دعا کی، خدایا میرے اس بچے کی بھی سن لے، اسے بھی گھر گھرستی کا سکھ نصیب کر۔ آخر ایسا کیا ہو گیا مما؟ اچھا بھلا ہوں، گھر ہے، بچے ہیں۔ عاصم نے مسکرا کر ان کا ہاتھ چوما۔ یہ بچی سمیرا کون ہے؟ بالآخر مما نے وہ بات پوچھ ہی لی۔ عاصم ہنس پڑا۔ مما، وہ ایک بہت اچھی خاتون ہے۔ ایک محفل میں اتفاقیہ ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے کچھ آرٹیکل ماحولیات کے متعلق پڑھ رکھے تھے، میری تحریر ان کو بھائی تو انہوں نے مجھے کہانیاں لکھنے کا مشورہ دیا اور میں نے ان کے ہی مشورے پر وہ کہانیاں لکھی تھیں۔ شاید میں بھی رائٹر بن جاتا اگر… وہ پھر خواہ مخواہ ہنسا۔ سبین میری بیماری کا سن کر بھی نہیں آئی۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں، لیکن ان کی بند آنکھوں کے کونوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عاصم نے ان کے آنسو پوچھے، ماتھے پر بوسہ دیا۔ مما، آپ فکر نہ کریں، میں ایسے ہی خوش ہوں، اسی زندگی کا عادی ہو گیا ہوں۔ اس نے انہیں اچھی طرح کمبل اڑایا اور بیڈ روم سے باہر نکل آیا۔ ایک ایسا درد ہے جو ہر آن اس کی آنکھوں سے بہہ نکلنے کو تیار رہتا ہے، احساس میں قاتل جس کا تریاق نہیں، ایسی خزاں جس کا اختتام نہیں۔ وہ تڑپا دینے والی سوچوں میں گھرا، سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سامنے عارفہ کھڑی تھی۔ اس نے خاموشی سے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ وہی لفافہ تھا جو اس نے سمیرا کو بھیجا تھا اور جسے عارف نے سمیرا کے بیگ سے جانے سے نکال لیا تھا۔ بھائی، عارفہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ پگلی، عاصم نے آہستہ سے اس کے بالوں پر شفقت سے تھپکی دی، مت رو اور مجھے اچھی سی چائے پلا دو۔ معصوم پوچھتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی، اور تمہیں کیا خبر سبین کہ ایک تمہارے رویوں سے کتنے دلوں کو زخمی کیا ہوا ہے؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عاصم نے سوچا، چند لمحے اپنے بیڈ روم میں کھڑا کسی نامحسوس خوشبو کو اپنے اندر اتارتا رہا، جیسے اتنے سالوں بعد بھی سبین کی خوشبو یہاں موجود تھی، بلکہ ابھی کچھ دیر قبل جب وہ یہاں آئی تھی تو یقیناً یہاں ہی ٹھہری ہوگی۔ اس بیڈ روم نے اس کی ساری خوبصورتیوں اور نزاکتوں کو دیکھا ہوگا۔ عاصم دل کی گھٹن سے گھبرا کر بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ میں کس کی ہتھیلی پر اپنی خوشیوں کی لکیر تلاش کروں، کس کی پیشانی پر محبت کا ستارہ طلوع ہوتے دیکھوں؟ کومل، جو اسے ایک نہ ختم ہونے والا درد بخش گئی تھی، اور سبین، جس نے ہر آن اس درد میں اضافہ کیا، جس نے اور بہت سارے درد اس کے دل میں رقم کر دیے تھے، اور میں وقت کی ناانصافیوں کے پنجرے میں قید ہوں۔ عاصم نے بالکنی کی ریلنگ سے جھک کر نیچے دیکھا۔ میں اس کی سلاخوں سے سر ٹکراتا ادھر ادھر پھڑپھڑاتا ہوں، میرا ہر انگ زخمی ہے، میں چور چور ہوں، منزلوں کے سراب کے پیچھے بھاگنے کی ظالم تکن ہے، میرا کوئی لمحہ میرا تابع نہیں، میری کوئی سوچ میری تابع نہیں، میں اپنی تنہائیوں کا تاج در ہوں، میری سلطنت میں تمام عمر کے رت جگہ ہیں، میرے امر ہمراہ میری رسوائیاں اور اندھیرے ہیں، میرا انتظار اور میری آس لامحدود ہے، اور میری سعی بے نشاں آنکھوں کے کونوں میں اکٹھے ہو جانے والے آنسوؤں کو۔ عاصم نے ہتھیلی کے پشت سے پہنچا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بھائی، عارفہ نے اسے اس کے بیڈ روم سے پکارا، وہ اس کے لیے چائے لائی تھی۔ وہ بیڈ روم میں آ گیا۔ تھینک یو گڑیا۔ اس نے چائے کا کپ لے لیا۔ عارفہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ بھائی، آپ صبح چلے جائیں گے؟ ہاں، کچھ دن اور رک جاتے، ماما کی طبیعت اور بہتر ہو جاتی تو۔ جانا تو ہے ہی، آج نہیں تو کل۔ بھائی، اس نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔
مما آپ کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں، آپ کی ناکام زندگی کا دکھ انہیں کھائے جا رہا ہے۔ آپ نے آنے کا کہا تو اتنی خوش ہوئیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچ ڈالا۔ انہوں نے سبین کو بھی اطلاع کر دی، بچوں کو بھی بتا دیا کہ تمہارے پپا آ رہے ہیں۔ اور پھر جب سبین بھابھی ادھر آئیں تو مما کی خوشی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کتنی بار انہوں نے مجھ سے چپکے چپکے کہا، سبین کی آنکھوں میں عاصم کے انتظار کے دیے جل رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اب کی بار میرے بیٹے کو کوئی ابدی خوشی ملے گی، وہ بھی ہنسے گا۔ میری کتنی دریدہ آرزو ہے اسے بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھوں، شاید میری آرزو اس بار پوری ہو جائے۔ اس نے بھی تو یہی سوچا تھا، لیکن بھول گیا تھا کہ وہ تو صحرا کا مسافر ہے اور سرابوں کے سائے اس کے بریدہ پیراہن سے لپٹے۔ اس نے بھی تو ایک بار پھر سبین کی زلفوں کی مہک لینے کی تمنا کر ڈالی تھی، اس کی کوملتا کو پا لینا چاہا تھا، اس کی محبتوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آنکھیں موند کر سونے کی تمنا کر بیٹھا تھا۔ لیکن رت جگہ اس کی تقدیر تھے، شاید اس کی محبتیں ہمیشہ گم گشتہ اور شام اداس رہنا تھیں۔ اس کے لیے دور دور تک تو طویل اور ظلمت پاش شبیں تھیں اور بس۔ بھائی، عارفہ نے اسے خاموش دیکھ کر پھر پکارا۔ سبین بھابھی بھی بہت بدلی بدلی لگ رہی تھی، مسکراہٹ ان کے ہونٹوں اور آنکھوں میں بیک وقت کھلتی تھی۔ مجھے بھی لگتا تھا جیسے اب کی بار آپ یہاں آئے تو، لیکن پھر جمال بھائی نے وہ پیکٹ بھجوایا دیا اور سب راکھ میں مل گیا۔ ہاں، سب راکھ میں مل گیا، عاصم نے آہستگی سے کہا اور چائے کے ہلکے ہلکے سپ لینے لگا۔ کاش سبین اتنی شکی اور جھگڑالو نہ ہوتی۔ بلا شبہ شک بڑی سے بڑی اور مضبوط سے مضبوط محبت کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ کاش ہمارے درمیان کبھی اعتبار کا رشتہ قائم ہو سکتا۔ بھائی، آپ نہ جائیں، عارفہ نے التجا کی، سبین بھابھی کو منا لیں۔ کیا میں نے کبھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی؟ اور میں تو اب بھی اپنی ساری انائیں کچل کر ایک بار پھر اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اس نے بیچ راہ میں ہی روک دیا۔ عاصم نے اداس نظروں سے عارفہ کو دیکھا اور سوچا اور کچھ وہ کہے بغیر نگاہیں جھکا لیں۔ بھائی، ہمارے لیے، مما کی خاطر، ٹیپو کنزا اور انیزا کے لیے ایک بار پھر آپ بھابھی کی طرف جا کر دیکھیں، انہیں منانے کی کوشش کریں۔ عارفہ نے التجا کی، ٹیپو کنزا اور انیزا کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے کہ وہ آپ سے دور ہیں؟ اس کے دل میں کسی نے چٹکی لی۔ اس نے تڑپ کر عارفہ کی طرف دیکھا، اور پتہ نہیں مجرم کون ہے اور سزا کسے مل رہی ہے؟ اس سارے سیٹ اپ میں زیادہ قصور کس کا ہے، اس کا، سبین کا یا تائی اماں کا؟ اس نے دل گرفتگی سے سوچا، لیکن قصوروار کوئی بھی ہو، اس کا گھر تو نہیں بن سکا تھا۔ زندگی کے 15 برس ہاتھوں سے پھسل گئے تھے اور وہ خالی ہاتھ تہی داماں کھڑا تھا، اور کوئی نہیں تھا جو اسے بتاتا کہ اصل قصوروار کون تھا۔ آپ کو اپنے گھر میں خوش دیکھ کر مما کی آدھی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کیا تم سبین کو نہیں جانتی ہو گڑیا؟ اس کا دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہے، اس میں کسی نرمی کی گنجائش نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک بار تو آواز دیتی، پکارتی مجھے۔ ہر بار میں اس کی طرف آیا، وہ تو ایک بار بھی میری طرف نہیں آئی، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایک آخری کوشش، ہاں ایک آخری کوشش۔ اس نے خالی کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ مما کی خاطر، بچوں کے لیے۔ وہ عارفہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، زخمی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے کونوں پہ ابھری اور معدوم ہو گئی۔ اوکے، اس نے اس بات میں سر ہلایا تو عارفہ کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں، اور وہ عاصم سے اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے جلدی سے خالی کپ اٹھا کر باہر نکل گئی اور آنکھیں موند کر کرسی کی پشت سے سر ٹیکے اس کے لبوں پر بے اختیار ایک بھولا بسرا نغمہ آ گیا۔ میرا دل ہے سیب سمندر، میں قطرہ قطرہ برسوں، تیرے پیار کو پھر بھی ترسوں۔ کب رات ڈھلے دن آئے، کب میل ہو تیرا میرا، کب دل سے دل مل جائے، کب سیب سے موتی نکلے۔ وہ گنگناتا رہا تھا اور دل میں امید کا ایک ننھا سا دیا پوری آب و تاب سے جل اٹھا تھا۔